السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اما بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بولا تھا کہ عرفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اب عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری خطبہ کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات کہنے کے لیے آیا ہوں وہ صحیح طریقے سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے کی اور سمجھنے کی، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلی بات عرفات میں خطبہ نہر کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پوچھتے، نہر کے بارے میں تمہیں کیا جانتے ہو؟ نہر کہے تو کیا ہو بول کو پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو۔ نہر کہے تو کیا ہو کہ تو اب ذوالحجہ کا 10ویں دن کہ تو عید کا دن، بقرعید کا عید کا دن، لیکن صحابہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ابھی کیا تو دوسرا معنی رہتا کیا کی کو بول کو سوچتے رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ کیا یہ روز مقدس دن نہیں، کیا ہے دن کہ تو کیا یہ حج کا 3ویں دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ یہ 3ویں دن حج کا، یہ مقدس نہیں، کیا بولے مقدس، یہ مقدس کا مہینہ نہیں، کیا کہ تو ذوالحجہ، یہ مقدس کا نہیں کیا مہینہ کو بول کو پوچھتے، ہاؤ کو بول کو بولتے، کیا یہ شہر مقدس نہیں کیا وہ بول کو پوچھتے، مکہ ہاؤ مقدس کو بول کو بولتے صحابہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اور ایک بات ارشاد فرماتے، کیسا ہے تو یہ مقدس کی ویسا ہے تمہارا جان، مال، خون، تمہاری عزت اور آبرو سب بھی ایسا مقدس کو بول کو بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کعبہ سے بھی زیادہ ہے تمہارا مال، تمہارا جان، تمہارا ایمان، تمہارا آبرو، تمہارا عزت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، کعبہ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک بول کے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب یہ بولنے کے بعد حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، وداع کسی کو بولتے الوداع، کسی کو آخری بار بائی بولنا، الوداع بولنا، اس کو یہ حجۃ الوداع ہے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تمام انسانیت کے بارے میں شروع کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بول کے سن رکھو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہے۔ تو کیا ہے تو زمانے جاہلیت میں ہے کہ وہ پورا جاہلیت میرے دو پاما کے نیچے میں دبا ڈالو، اسے کو بولتے ہیں وہ کیا، وہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو کیا وہ اب عربی کو اجمی کے اوپر کیا بھی زیادہ فضیلت کیا بھی نہیں ہے۔ عربی کے تو کون ہے؟ عرب والے۔ اجمی کے تو کون ہے؟ ہم لوگ سب بھی عرب سی نہیں سر کا، کوئی عرب نہیں سر کا، باقی علاقے پورے اجمی۔ اب یہ لگا کو کیا بھی فضیلت نہیں کو بول کے بولتے ہیں، تم عربی والے ہو کو تم نہ
अरबी वाले बगैर अरबी वाले से तुम्हें अफजल को बोल को क्या भी नहीं, इसमें फजीलत क्या भी नहीं को वो बोलते हैं। फिर को अजमी वाले को बोलते हैं, तुम्हें अजमी वाले को बोल को अरबी से ज्यादा फजीलत को बोल को क्या भी नहीं को बोल को बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बोलने के बाद और एक बात इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये भी नहीं है कि काला गोरा से बेहतर या गोरा काले से बेहतर, गोरा काले से भी फजीलत ज्यादा बेहतर है को बोल को भी क्या भी नहीं, काला गोरा क्या भी नहीं है, काले को गोरे के ऊपर फजीलत नहीं, गोरे को काले के ऊपर फजीलत नहीं को बोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए। उस वक्त और एक बात इरशाद फरमाए, तुम सब आदम के औलाद हो, तुम सब आदम के औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए थे, पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कही को बोले तुम्हें आदम के औलाद है, आदम को मिट्टी से पैदा करेगा बोल को। अब मट्टी क्या तो हमने कहा तो जगह के ऊपर लगी तो हमारे बदन के ऊपर है, कैसा हमें ऐसा पोछ डालते, उसे पोछ को झटक डालते रहते, वो इंसान की हैसियत को बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं अरबी अजमी काला गोरा ये क्या भी नहीं, ये दो भी मेरे दो पामा के नीचे दबा डालों को बोल को बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबी नहीं, अजमी नहीं, गोरा नहीं, काला नहीं, सब भी मेरे दो पामा के नीचे मैं दबा डाला हूं। अब सी ये क्या भी नहीं को बोल को बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सब भी आदम के औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम कैसा पैदा किए थे, मिट्टी से। अब कहते क्या हो, मिट्टी बदन के ऊपर का तो कैसा हमें झटक डालते, उसे पोछ डालते रहते, वो हमारी हैसियत, इंसान की हैसियत। तुम्हें अरबी को बोल को फकर करते हैं, अजमी को बोल को फकर करते हैं, मैं काला को बोल को फकर करते हैं, गोरा को फकर करते हैं, लेकिन तुम्हारा वैल्यू वो मट्टी तुम्हें तो बोल को बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ अब और एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, काफिर का जमाना अब खत्म हो गया, काफिरों का जमाना खत्म हो गया, अब अगला आने का अच्छा जमाना, नेकी का जमाना। कहीं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कैसा है तो फैलना कर ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा ज्यादा से ज्यादातर फैल गया। कितने लोग आपको फौज आपको इस्लाम कबूल करते चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर। वो बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं जाहिलियत का जमाना खत्म हो गया, अब अच्छा जमाना शुरू होता, सच्चाई का नेकी का जमाना शुरू होता। अब अल्लाह के सिवा किसी का इबादत करना न को तुम्हें, अल्लाह की इबादत करो तुम्हें। तो बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, और अमानत में खयानत मत करो, अमानत में खयानत मत करना। अब ये बारे में अल्लाह भी सबको डराया, अमानत में खयानत करे तो जहन्नम की अजाब बहुत बड़ा अजाब है को बोल। अमानत में खयानत करे तो क्या, एक आदमी मेरे कहने का को भाई ये फलाना चीज है, फलाना इतना पैसे नहीं, फलाना चीज है तुम्हारे कहने रखो को बोल को तुम्हारे ऊपर यकीन सी पतारे से तुमने दिया, वो आदमी आको तुमने दिया स्टम्बो, तुम्हें उसे खोल को भी देखे जानी क्या वो को बरतने का दूर की बात, उसे खोलने की इजाजत भी तुमको नहीं है। तो अब पैसे कौन तो आदमी, ये मस्जिद का पैसा नहीं, ये मदरसे का पैसा नहीं, ये मेरे पैसे भाई तुम्हारे कन रखो, मैं जरूरत है स्टम्पो मैं आपको पूछता हूँ मुझे दे देगी, तो बोल के तुमने दिए स्टम्पो, तुम कैसा है तो दिया कि वैसा जो पैसा को बाजू रखना, उसमें असल उसके खोलना भी इजाजत नहीं है, खोलने की इजाजत भी। अब उसमें से हमें पैसे काटने को बरत को मैं बाद में डाल रहा हूं तुमने उसे उन पूछे स्टम्पो उन अभी थी ना पूछने का कहने को इजाजत नहीं है। इसे छे अमानत में खयानत करना का थे, उन कैसा है तो चीज दिया कि वैसा जैसे लौटाना, उसमें कमो पेशी क्या भी करे जानी, इसे अमानत में खयानत कहते। इसके बारे में अल्लाह जहन्नम की आग तुमना लगा को मामूल होने अजाब देते नहीं, जहन्नम की आग है कैसा है तो तुमने पता को लेकर दिया होने से तुम्हें पता को वैसा झड़ना, वो पता को तुम्हें निभाना, तुम्हारे ऊपर यकीन करके होना आया, उसमें से मैं काट लेता हूँ पैसे बरत लेकर बाद में मैं डालता हूँ तो अल्लाह गच्छू रहता नहीं, उन गच्छ रहे तो अल्लाह गच्छू रहता नहीं। अमानत में खाना तो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, ये बहुत बड़ी बुराई इंसान के अंदर, उसका से अल्लाह को पसंद नहीं, ये बुराई के तौर पर अल्लाह बयान करे, ये बड़ी बुराई को बोल को बोले अल्लाह, ये बड़ा गुनाह को बोल को बोले अल्लाह, ये गुनाह का सजा आखिरत में अल्लाह ताला जहन्नम की आग को बोल को बोले।
तो खाली अमानत में खयानत करना वो हमारे नजदीक वो बहुत हल्का, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो बहुत भारी। कल कयामत में इसकी पकड़ होती, इसका बारे में सवाल किया जाता अल्लाह ताला। अब बाद में अब इंसानियत के बारे में बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट भी इंसानियत के बारे में शुरू करे, अरबी के ऊपर अजमी के ऊपर, ना अजमी को अरबी के ऊपर, काले के ऊपर गोरे को काले के ऊपर, क्या भी नहीं कहो। अब फिर को इंसानियत के बारे में शुरू करे, कैसा है तो तुम ना जिंदा रहने का हक है कि वैसा गैर मुस्लिम को भी जिंदा रहने का हक है, उसे पूरा पूरा हक है, लेकिन उन किसी का हक नहीं मारा हो, मुसलमान का या गैर मुस्लिम का भी हक मारा हो, ना किसी का कत्ल करा हो, ना वो मुजरिम हो, ना वो जालिम हो, वैसा वाला को परे तुम ना क्या अभी नहीं वो लगा कुछ कैसा है तो तुम ना जिंदा रहने का हक है कि वो लगा को भी ऐसा जिंदा रहने का हक है। क्या कि गैर मुस्लिम आया लगा गर्दना उड़ा के हमें इस्लाम कबूल करते नहीं है को बोल कर लेने का इजाजत हमना नहीं है। हमना कहता हक है कि गैर मुस्लिम को भी जिंदा रहने का उतना हक है। उन मुसलमाना का किसी का कत्ल नहीं करा हो, कत्ल करे तो हमें मारना उसे। गैर मुस्लिम हमारा मुसलमान भाई ईमान वाले के भाई का जान निकाला उन्हें, जब बदले में हमें मार सकते, वो भी हुक्मरानों से, हम खुद जाकर मार नहीं सकते। हुक्मरानों से, हुकूमत के नीचे है, वो पूरा हैंड ओवर में है उसे भी करने का। हुकूमत नहीं सर का मैं कर डाल दूंगा तो होता नहीं। जबकि टेम्पो पूरा इस्लाम कराया होने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बताए, वो लगा कि टेम्पो कैसा है वैसा बताते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बोले ऐसा क्या भी नहीं है, वो बोल को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ना कहता है तो हक है कि गैर मुस्लिम को भी वक्त जिंदा रहने का हक है। तुम्हें वो लगा कुछ चुपके वो लगा सी लड़ा डाल लेना, नहीं चुपके तुम्हें जंग छेड़ना, जंग नहीं है। जंग तुम्हारे ऊपर आ गई तो अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमाया, जंग तुम्हारे ऊपर लाजिम हो गई तो तुम्हें गर्दना उड़ाओ। बोले अल्लाह गर्दना कने टारगेट करोगे बोल को खुद कुरान में बोले अल्लाह ताला का टारगेट करना अल्लाह रखते तो तुम्हें गर्दना, वो लगा कि गर्दना कने टारगेट करोगे बोल को खुद अल्लाह इरशाद फरमाया कुरान में। लेकिन तुम्हें खुद मैदान जंग बनाने की इजाजत दिया नहीं अल्लाह। वो लगा सी लड़को खाली पीली में हमें वो लगा सी लड़वाल को जंग करेजा नहीं हमें, वो लगा 7 जनरेशन को हमें भी आराम से रहना। वो लगा हम क्या भी नुकसान नहीं करे तब तक हमें भी खामोश रहना, कब वो तो नुकसान करती जब हमें उसका बदला लेना। अब वो बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानियत के बारे में, गैर मुस्लिम हो तो भी उसे जिंदा रहने का हक है। बाद में विरासत के बारे में अल्लाह से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं विरासत के बारे में अल्लाह से डरो। कहते क्या विरासत। अब ये अमानत में खयानत के बारे में और एक भूल गया मैं। अबे हम अमानत रखे जी फलाना एक आदमी आपको मेरे कहने अमानत रखो गया, वो आदमी इंतकाल हो गया कर लो। अब उसके बच्चे वो गुनेगार समझो, वो जालिम समझो, वो लगा शराबा पी को पैसे पूरे बर्बाद कर डालते वो बोल को मई मस्जिद के उसमें लेका को रखना, नहीं मदरसे में लेका को रखना, कैसा बोल बर्बाद कर डालता, पीता रहता उन्हें, कहीं को वो बोल को करने की इजाजत मुझे नहीं है। अमानत दिया तो उसके बेटे खराब वाले, उसके बच्चे खराब है, मैं मस्जिद में रहता हूँ बोल को देने का इजाजत भी हमने अल्लाह नहीं दिया। वो कहीं को कभी तो उसका बाप मर गया कि वो उसका विरासत के नीचे चले गया। वो विरासत बच्चा को बांटना विरासत है, बच्चा को चले जाता वो विरासत हो गया, वो मर गया करते तो बच्चा को कंफर्म होने बोलना ऐसा तेरे बाप को मेरे का अमानत है क्या, अभी ये अमानत को बोल को कैसा है तो उसका बाप दिया कि वैसा सेम वाला को रिटर्न करना। अब या विरासत के बारे में बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विरासत बाप इंतकाल होने के बाद बच्चों को बांटते ना उसे विरासत बोलते। अब वो विरासत के बारे में अल्लाह ताला से डरो को बोल को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले जमाने में भाई का हक खाता सो विरासत खाता सो, भान का विरासत खाते सो, वो बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा में बोलते हैं डरो तुम्हें विरासत के बारे में, कहता है तो हक है कि किसे कहता देना कि वो दे डालो तुम्हें तो बोल को बोले। और कुरान की एक आयत पढ़ को सुनाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या को कुरान में अल्लाह ताला बोलता है कौन है तो विरासत कहता है कि उन खाना नहीं, जहन्नम की आग की निवाले उन्हें पेट में जमा कर लेता है वो बोल को कुरान का आयत वो पढ़ को सुनाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन मामूल होने उसका माल खाना नहीं, जहन्नम की आग के निवाले खा को पेट में जमा कर लेता है। वो कैसी आग है, जहन्नम की भड़कती आग है, कैसा खोलता रहता लावा कैसा भटकता रहता ऊपर को, वैसा के निवाले उसके पेट में वो जमा कर लेता है। अब भी यार रहने कुछ दुनिया में रहने कुछ को बोलता है अल्लाह। वो आयत पढ़ को डराए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको
पूरे सहाबा को डरे, डरो तुम्हें, अल्लाह ऐसा बोलता है विरासत किसका कितना की तुम्हें दे डालो, उसका हक खाना न को बोल को विरासत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे। बाद में शादी होने के बाद अब किसी का शादी हो गया, अब वहां बच्चा बच्ची पैदा होते औलाद, वो बच्चा बच्ची पैदा हुए सुना को परे जिना सी पैदा हुआ, ये बच्चा ये बच्ची जिना सी पैदा हुई करने का इल्जाम हमें लगा नहीं सकते। वैसा लगाए तो तुम्हें सुन रखो, तुम्हें जहन्नम की आग के हवाले होना पड़ता, और सख्त अजाब जहन्नम में कैसा है तो अलग अलग पाठशाला देगी, वैसा जहन्नम में भी अलग अलग है, उसमें दर्जे भी है जहन्नम में भी, और उसमें सबसे नीचे दर्जे में चले जाता वैसा इंसान है। वैसा इल्जाम लगाई जानी है हमें। और एक बात फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा अगर गवाहों के जरिए से साबित हो गया तो उसका जुर्म, अब जब उसको क्या करना, अल्लाह ताला कैसा है तो बोले कि वैसा कोड़े मारना, कोड़े मार को, वो भी कोड़े मारना कैसा, हमें मारना ले जानी। हाँ, अब चारों गवाह देते हैं, देखे चारों आदमी सही चुन जिना करी, जिना करके बच्चा बच्ची को पैदा करी, अब इसे हमें मार डालना, अल्लाह बोले ना सौ कोड़े मारो को हमें मार डालेंगे तो बोल के मारे जानी, हमें इजाजत नहीं है। इस्लाम की हुकूमत के ऊपर है ये, हमारे ऊपर क्या भी नहीं, हमें दे के मार डाल देगा तो होता नहीं, अल्लाह हमना साहबा मारता। और हुक्मरानों को बोला तुम्हें ऐसा मेरा हुक्म लाजिम करते को तुम्हारे दिल में रहम नहीं आना, रहम आपको वामो पापे तो बोल आप तुम्हें मेरा अजाब देते बोला तुम्हें जर्रा माने भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आना, रहम आपको पाप को बोल कर टिका डाले जानी, टिका तो उल्टा तुम ना मारता बोल को बोले अल्लाह। कौन है तो हुक्मरान वो करता कि उसके दिल में रहम आपको टिकाया तो उसे उल्टा अजाब देते बोल कर अल्लाह बोले। अब ये जिना के बारे में, निकाह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत बताते हैं, ऐसा निकाह होने के बाद, पाकीज़ा निकाह होने के बाद किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा नहीं सकते तुम्हें, वो गलत इल्जाम है तो असल इल्जाम ही लगाने की जरूरत क्या हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जियो, दूसरा जिंदगी में कहीं कोई खाम खा में जाने का क्या जरूरत तुमने दूसरा जिंदगी में देखने का, वो टेम्पो ऐसा होता है को बोल को बोले, ऐसा इल्जाम लगाने का इजाजत तुमने नहीं है, जहन्नम की आग के हवाले होना पड़ता तुम्हें लगा, तुम्हें डरो को बोल को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाद में कौमियत चेंज करना, अबे हमें फलाना कौम वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी फर्स्ट उसमें बोल डाले क्या भी नहीं है सब भी को बोल को, फिर को अब और एक बार बोलते हैं कौमियत चेंज करना, कौम को बदलाना, अब हमें फलाना कौम वाले हमारे से ज्यादा बड़े कौम वाले हैं, हमें हमना बड़ा बोलना को बोल को हमें कौमियत चेंज कर लेना जायज नहीं। अब ये हमारे जमाने में मैं आसान मिसाल बोलता हूं, हमारे लोग बहुत सारे मुसलमान भाई बहना कैस्ट सर्टिफिकेट रहता वो बदलाते रहते, वो भी इसमें दाखिल बदलाने की इजाजत नहीं है, हमना रिजर्वेशन आगे वास्ते बदलाते रहते, बीसीबी है तो रिजर्वेशन ज्यादा, बीसीई है तो कम रिजर्वेशन है तो बोलकर रिजर्वेशन के वास्ते कैस्ट सर्टिफिकेट हमें बदलाते रहते, उसकी इजाजत भी हमना नहीं है। ये कौमियत बदलाने के नीचे चाहता, ये भी हमें ऐसा करते सो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं सरका क्या कि वो रिजर्वेशन के बारे में पढ़ जाओ को बदलाते रहते, लेकिन यहाँ आखिरी खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ये इजाजत तुम ना लगा को नहीं है को बोल को, देखो किसी का ने तो कर्ज ले को उसका कर्ज वापस जरूर करना को बोल के बोले, अब मैं फलाना आदमी का ने कर्ज लिया वो आदमी को मैं जरूर वापस करना, क्या भी हो जाओ जरूर वापस करना, ऐसा नहीं कि मैं कर्ज ले को खा लाओ तो इसे देता नहीं क्या कर ले तो कहना, ऐसा नहीं बोलना को बोल के बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा अगर करे तो तू अगर दुनिया के खातिर, दुनिया का चंद माल के खातिर तू उसका कर्ज खा लिया तो जहन्नम की आग को बोल को हमने ये बहुत मामूल हो जाता है, ये मामूल नहीं, अगर ये मामूल को बोल को तुमने कवाया तो मामूल होने घर में स्टोव सुलगा को चूल्हा सुलगा को एक बार तुम्हारा नहीं उसमें रखो, मालूम होता कितना मामूल की मालूम होता, जलपन जम्मू को निकाल डाले कर लो वो मामूल नहीं हाथ वैसा छट डाले कर लो वो मामूल है, ये हमने लगा मालूम हो रहा नहीं, ये जर्रा खुद भी हमें वैसा रख सकते नहीं, वो आँच में अंगली भी रख सकते नहीं, वैसा का पूरा बदन हमारा जलाता वो बोल को बोलता है जहन्नम की आग में सालों साल। फिर जब वो क्या हालत होगा हमारा, देखो एक दूसरे से लड़ना जायज नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले एक दूसरे से लड़ना बिल्कुल जायज नहीं हमना, अब मुझे उसे बनता नहीं को बोल को वो आदमी को मैं मारना ये करना ये क्या भी जायज नहीं, एक दूसरे से लड़ना। अब ये बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कत्ल करना भी जायज नहीं, कत्ल भी हराम, मारना लड़ना उसी एक दूसरे से खाम में चुपके लड़ा करना, चुपके मार लेना कत्ल कर लेना ये सब भी जायज नहीं को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ये बारे में चे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं जाहिलियत के तमाम खून को बातिल कर दिए गए। कहे तो क्या हो, अब किसी को किसी पर पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं, पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून, रबिया बिन हारिस का बेटा का खून बातिल करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ये सब पिछे, अबे पिछे क्या कि हो गया, सो वो बारे में मैं रिवेंज लेना, बदला लेना को बोल को लेने की इजाजत नहीं है को बोल को सबसे पहले मैं अपनी खानदान से शुरू करता हूं। रबिया बिन हारिस का बेटे का खून, मेरा खानदान का छोटा दूध पीने वाला बच्चा का जाहिलियत के जमाने की वजह से कत्ल हुआ था ना, मेरे खानदान को मासूम बच्चे का मैं छोड़ रहा हूं तुम्हें लगा भी छोड़ना चाहिए, पुराने खून के बदले में तुम्हें मारने की इजाजत अब किसी भी नहीं है को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको बोलते हैं। और एक बात बोले, मुसलमान भाई भाई, इसमें भाई भाई का तो गैर मुस्लिम भी वो लगा के क्या बोलते हैं, अबे अलग कौम के वजह से, कबीले के वजह से, खून के वजह से वो लगा भी भाई भाई होने रहते। लेकिन मुसलमान में क्या हो सकते, तो इस्लाम में उन खान वाला हो, सैयद वाला हो, शेख वाला हो, कौन भी पठान हो, कौन भी हो, आपस में हमें सिर्फ भी अलग अलग है तो भी हमें एक इस्लाम हमना पाबंद करता, इस्लाम एक हमला पाबंद करता। तुम्हें लगा भाई भाई को कैसा करते, तो अब तुम्हारा सग्गा भाई के बारे में कैसा है तो सोचते कि दूसरा मुसलमान भाई के बारे में भी तुम्हें वैसा सोचना, भाई भाई के तो या वो, अब फलाना तुम्हारा सग्गा भाई नमाजा पढ़ना नहीं, हाँ अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलता है, अल्लाह के रास्ते में आना नहीं, शैतान के रास्ते में जाता हूँ, जहन्नम की आग में जाता हूँ, तुम ना मालूम, तुम ना खुशी होती तुम्हारा सग्गा भाई वैसे जाता है कि तो खुशी नहीं होती। वैसा तुम्हारा ईमान वाला भाई के बारे में भी फिक्र करना, उसको दीन की दावत देना, अल्लाह की तरफ बुलाने को आना उसे, ये भाई भाई के तो हमें मजहब का भाईचारा, मजहब में हमारे मजहब में भाईचारा कायम रखते, हमें मजहब को भी कायम रखते, हमें भाईचारा को भी हमें कायम रखते मुसलमान, ये मुसलमान भाई भाई के तो। और एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, तुम्हारे गुलाम, या 2 बार आया, तुम्हारे गुलाम जो खुद खाओ वही उनको खिलाओ, और जो खुद पहनो उनको वही पहनाओ। गुलाम के तो क्या, तुम्हारे नीचे काम करने वाले वर्कर्स, मुलाजिम, तुम्हारे वर्कर्स, वो लगा के बारे में बोलते हैं, तुम्हें क्या है तो खाते की खुद वो लगा को भी वोच खिलाओ, तुम्हें क्या है तो पहनते हैं कि खुद वो लगा को भी वोच पहनाओ। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें 3 वक्त का बिरयानी खाते हैं, उसे 2 वक्त का मामूल वेटरेस खाने का भी उसे नहीं है तो बोल को करना ना को बोलते हैं। सैलरी वक्ताज रखना, तुम्हें कहता है तो 3 वक्त तुम्हें बिरयानी खा सकते हो, तो तुम्हारा नीचे काम करता सुन भी 3 वक्त बिरयानी खाना, तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उन भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना को बोल को बोलते हैं। तुम्हारे गुलामों के बारे में डरो को बोल को भी बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक हदीस में बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामों के बारे में बहुत ज्यादा सवाल होता आपको बोल को। बाद में अब तमाम बातिल खून पूरे निकाल डाले को बोल को, ऑलरेडी ऊपर हदीस में बोल डाले, तमाम बातिल खून खत्म कर डाल दूंगा बोल को। अब वो फिर को याद है वो इरशाद फरमाए, बाद में सूद के बारे में बोले, वड्डी, सूद खाना हराम को बोल को बोले। अब और एक बात, जाहिलियत के तमाम सूद बातिल कर दिए गए, पूरा सूद में ही निकाल डालो, अब से क्या भी नहीं, सूद क्या भी नहीं। अब किसी का सूद का मुतालबा करने का हक नहीं। कहते क्या हो, अबे मैं हमारे कलीम भाई को मैं सूद दियो, वड्डी के नीचे पैसे दियो, मुझे परमिशन नहीं है कहते, मुझे इजाजत नहीं है कहते, तुम्हें मुझे वड्डी देना ना, मेरा वड्डी दो को बोल को पूछने का हक नहीं है को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का सूद, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से भी पहले अपने खानदान का सूद शुरू करे, या भी सूद के बारे में होचे, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का उन्हें भी ऐसा कर्जा देखो वड्डी लेते सो, सूद लेते सो, उना का खाली वड्डी चे करोड़ा होता सो, खाली वड्डी, असल नहीं, असल छोड़ो, खाली वड्डी उना का करोड़ा का माल होता सो अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं सबसे पहले मेरे खानदान से शुरू करता है, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का सूद में बातिल करता हूं। अब तुम्हें कौन भी मेरे चाचा अब्दुल का अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को देने की इजाजत नहीं है को बोल को बोलते हैं, इना को भी पूछने की इजाजत नहीं है को बोल को बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूद खाई जानी, सूद दिए जानी को बोल को। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी बोलने के बाद वो क्या नहीं मैं ले तो मेरा फायदा है को बोल को बोले नहीं, उन्हें भी अच्छा वो बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा बोले कि वैसा करे उन्होंने। बाद में औरतों का हुकूक के बारे में बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों के मामले में खुदा से डरो,
या स्टार्टिंग ही बोलते हैं। औरतों के बारे में मामले में खुदा से डरो, अल्लाह से डरो को बोलते हैं। कई को तुम्हारा औरतों पर और औरतों को तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हारे ऊपर औरतों के ऊपर कैसा हक है कि औरतों के ऊपर भी तुम्हारा हक है। और एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम्हारा शोहर अगर किसी आदमी अंदर घर में आने की वजह से नाराज होता है तो वो आदमी को घर में लाने की इजाजत तुमना नहीं है। अब फलाना आदमी आने से शोहर बोलता बीवी को, अरे फलाना उन्हें फलाना औरत आने से मुझे तकलीफ होता है, वो बोले तो वो औरत वो आदमी को अंदर नहीं लेकर आना घर में। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आखिरी खुतबा में बोले हक नहीं है, ले लगाने का हक नहीं है, उन शोहर के घर में रहती है। और एक बात कैसा है तो उन्हें इसकी कदर करती कि शोहर भी औरतों के बारे में ऐसा कदर करना और उन भी पूरे हुकूक उसके अदा करना। इन क्या है तो खाता कि उसकी बीवी को ओझ कराना, इन क्या है तो पहनता कि उसकी बीवी को ओझ पहनाना, और बीवी भी अपने शोहर के साथ वैसे हुकूक अदा करना, उसके हुकूक भी अदा करना। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बात इरशाद फरमाए, तुम्हारा खून और तुम्हारा माल कयामत तक के लिए एक दूसरे पर हराम है। कहते क्या उस जमाने में खून 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 होता सो झगड़े सिल्ली रीजन सा क्या भी नहीं, चुपके मार लेते सो, छोटे छोटे बातों को कतला कर लेते, जंग कर डालते सो। वो लगा बिल्कुल माल के वास्ते, वो टाइम को माल के वास्ते ज्यादा लड़ाया होते सो, कतला गारत होते सो। वो बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर हराम को बोलते हैं, तुम्हारा खून जान माल एक दूसरे के ऊपर हराम को बोल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। और बाद में नमाज के बारे में बोले, नमाज फर्ज है, नमाज किसी हालत में भी छोड़ना नको बोल को बोल ले। बाद में रोजा छोड़ना नको, बीमारी है तो बाद में फिर को रख लो, लेकिन पूरा छोड़ने का इजाजत नहीं है। ज़कात कंफर्म देना, अगर तुम्हारे कने हैसियत है तो अल्लाह की घर की ही जियारत करो, अल्लाह की घर की जियारत करो, हज करो, उम्रा करो, तुम्हारे कने हैसियत है तो बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर को ईमान वाले को एक वार्निंग दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाले को क्या को बोल के बोले करते तो मेरे जाने के बाद तुम्हें एक दूसरे के गर्दना उड़ा लेना नको, एक दूसरे को मार लेना नको, मैं चल जाने के बाद यासी तुम्हें मैं कैसा है तो बोलता हूँ कि अबे वैसा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी गुजारो को बोल को ईमान वाले को डराते हैं, इस्लाम के ऊपर कायम रहो, इस्लाम से हट जाना नको तुम्हें लगा तो बोल के बोलते हैं, किसी दूसरा मुसलमान भाई को तकलीफ देना नको तुम्हें लगा वो बोल के बोलते हैं, वो चाहे वो जबान से हो चाहे वो हाथ के जरिए से हो, तकलीफ देना नको वो बोल के बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद देखो, अब ऐसा के और बहुत सारे हैं रिवायत। अब इसमें इसके बाद आपने बहुत से उसूली अहकाम शरीयत बयान फरमाई। फिर मजमा की तरफ खिताब करके पूछा, तुमसे खुदा के यहाँ जब मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात बोलते हैं, सबा अल्लाह मेरे बारे में तुम ना लगा को पूछता, तुम्हें क्या बोलते मेरे बारे में को बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जब आपने सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन ने अर्ज किया कि हम कहेंगे कि हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया। क्या बोले, तुम्हें क्या है तो अल्लाह का पैगाम है कि वो पैगाम हमारे तक पहुंचा डाले, तुम्हारा फर्ज पूरा कर डाले तुम्हें को बोल को बोले। वैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क्या करते तो आसमान की तरफ अंगली बता को ऐसा, अल्लाह तू भी ये लगा बोलते हैं ना, ऐसा गवाही देते हैं ना, तू भी गवाह रहा अल्लाह, तू भी गवाह रहा, ये लगा ऐसा बोलते हैं बोल को 3 बार बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई और 3 बार फरमाया, ये अल्लाह तू गवाह रहना, ये अल्लाह तू गवाह रहना, ये अल्लाह तू गवाह रहना। इसी मौके पर कुरान पाक की एक आयत नाजिल हुई, सूरह माइदा की 3री आयत, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लामन दीना। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। कह तो पूरा दीन को क्या है तो दीन में लाना कि वो पूरा तुम्हारे ऊपर डाल डालो, पूरा क्या है तो बोलना कि वो पूरा मुकम्मल कर डालो और अपनी नेमत तमाम कर डालो, अपनी नेमत भी तमाम कर डालो और तुम्हारे लिए इस्लाम दीन को पसंद किया, हमारे वास्ते इस्लाम को पसंद करूंगा बोल को अल्लाह बोला। ये आयत सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत रोते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोलने के बाद मालूम हो जाता अल्लाह तमाम कर डालों को बोलता है, दीने क्या क्या है तो नेमत है कि वो पूरा तमाम कर डालों को बोलता है। कहीं तो क्या ये हमारे नबी का आखिरी वक्त क्या की को बोल को उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत रोते। उन्हें एक जरूरत चीज जरा सोच को क्या अल्लाह ऐसा बोलता है तमाम कर डालों को बोल को बोलता है क्या को बोल को सोच को उन्हें एक जनो रोते हो मौके पर।
बाकी सहाबा सोचते नहीं, खुतबा बोलते हैं ना वो टाइम को अल्लाह आयत उतारा, इसमें क्या है वो बोल के मामूल होने समझते वो लोग नहीं मालूम को। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों से ये भी फरमाया, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, तर्जुमा जो लोग इस वक्त मौजूद है वो ये सब बातें उन तक पहुंचा दे जो मौजूद रही है। या कौन कौन है तो है कि ये लगा कि पूरी जिम्मेदारी अब कौन कौन है तो वह नहीं है कि वो लगा पूरा को मैं क्या है तो बोले कि वो पूरा तुम्हें फैलाना, तुम्हें बोलना वो लगा को अबे मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं पूरा बोल रहा हूं, तुम ना लगा को। तो बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, किसे सहाबा को बोलते हैं पूरा तुम्हें ये पूरा तुम्हें करना चाहिए बोल को। ये बारे में मैं कुरान पाक की एक आयत लेता हूं, कौन सा रखते तो कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजतल लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। अब इसका तर्जुमा देखो, अबे मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए वजूद में लाए गए हो। हमारे बारे में अल्लाह बोलता है तुम्हें बहुत बेहतरीन उम्मत है, तुम्हें लोगों के फायदे के वास्ते वजूद में आए तुम्हें लगा। तो बोलकर हम ना बोलता है तुम नेकी की तलकीन करते हो, नेकी के बारे में दूसरों को हुक्म देते हो और खुद करते हो, बुराई से रोकते हो और बुराई से रोकते हो दूसरों को, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये आयत के सहारे में अब क्या होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना मेरा पूरा हो गया, अब तुम्हें करना ये पूरा को बोल को। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाए कि ये शायद मुझे यकीन नहीं है कि बाद में फिर हमें इसी मजमे में जमा होंगे और फिर हम मिलकर ऐसे बातें करने की दूसरा मौका नहीं रहता बोल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। खुतबा हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले शायद मैं फिर ऐसा इतना मजमे में फिर मैं दोबारा दूसरा हज नहीं कर सकता हूं, क्या है कि तुम्हारे से मिलकर ये मेरा आखिरी हज क्या की को बोल दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते। और ये काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दिए, ये काम अपनी उम्मत को बोले तुम्हारा फर्ज अब मेरा फर्ज हो गया, तुम्हें तुम्हारा फर्ज उठाना। अब किसके ऊपर है वो फर्ज है? पूरे उम्मत के ऊपर है, ये मेरे ऊपर तुम्हारे ऊपर हम सब के ऊपर है। हमारा भाई अल्लाह से दूर है तो उसे अल्लाह की घर की तरफ बुलाना हमारा फर्ज है, उसका फिक्र लेना हमें। अब तुम्हारा सगा भाई जहन्नम की आग में जाता है तो तुम ना कैसा है तो तकलीफ होती की वैसा हमारा ईमान वाला एक भाई अल्लाह से दूर हो जाता है तो उसे अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की दीन की तरफ बुलाना, ये हमारा फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खुतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? क्या मेरे बारे में अल्लाह तुम ना पूछे तो तुम्हें क्या बोलते? सहाबा क्या बोले? तुम्हें क्या है तो बोला को पूरा तुम्हारा फर्ज अदा कर डाले, तुम्हें को बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? है तो मेरा फर्ज हो गया। अब तुम्हारा फर्ज या कौन कौन है कि लगा पूरे ऊपर फर्ज है कि कौन कौन है तो या नहीं है कि वो लगा पूरे तक मेरे पूरे बातें पहुंचाना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी खुतबा बहुत घंटे का, ये चंद हाईलाइट्स आपके सामने में रखा और बहुत सारा है, घंटे घंटे पकड़ता वो बोलना करते तो खाली मैं जर्रे ले ले को आपके सामने बयान करूं। अब इसमें जो भी हमारे सामने आए इसके ऊपर हम 100% अमल करना। ये हमारे नबी का आखिरी खुतबा, जरा सोचो जरा दिल से, हमारे नबी की आखिरी बात ये पूरे बोले सो हमें इतने बारे में डरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ना हमारे गुलामों के बारे में, हमारे औरतों के बारे में, सूद के बारे में, नमाज रोजा जक़ात हज के बारे में, हर एक के बारे में हम ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराए आखिरी मौके पे। अबे उना को कब है तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि वो आयत नाजिल होने के बाद जब उन्हें कैसा है तो तकलीफ पड़ गई कि वो पूरे सहाबा बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोलते अब मेरा जाने का वक्त हो गया वो बोल को। उस टाइम को वो लगा भी बहुत लोग वहां है सो तकरीबन 1 लाख मजमा सहाबा, बस उससे हबी ज्यादा कितने जनों है इस्लाम कबूल करे सुनो, दूसरे दूसरे इलाके में है, यमन में है, शाम में, हर एक जगह है इस्लाम को वास्ते। अब उससे पिछले जुम्मे में क्या बोला? कहा है तो नया होने मुसलमानों हुए कि सहाबा को भेजना, जाओ तुम्हें जाको लगा को दीन के बारे में सिखाओ, इस्लाम के बारे में सिखाओ को। अब वह कौन कौन है तो नहीं है कि लगा सबको बोलो बोल के बोले। अब ये पूरा मकसद क्या होगा तो ये आखिरी खुतबा हमें सुनने के बाद इसके ऊपर हमें अमल करना, हमारे भाइयों को बुलाना अल्लाह के रास्ते में, यह हमारा फर्ज है। भाई भाई के तो खाली खून का रिश्ता नहीं या ईमान वाला मुराद है हमारे इस्लाम के अंदर है।
हमारा हर एक ईमान वाला भाई भी हमारा सगा भाई के बारे में कैसा है तो सोचते कि वैसा उसके बारे में भी हमें सोचना। वो एक मुसलमान में भाई भाई का कहते हो, सोचेंगे ना भाई। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बात हमारे सामने आई अगर इसमें गलतियां हो गई तो अल्लाह ताला इन गलतियों को माफ फरमाए, और जो बात हमारे सामने आई है इन सब के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।